Children, today we are going to start a new chapter, that is Microsoft PowerPoint, chapter 7. Topics we are going to cover are introduction to PowerPoint, starting PowerPoint, creating a blank presentation with design theme, creating the title slide, adding a new slide to a presentation, changing the slide layout, adding a clip art image, adding a picture image, adding border to the image, adding solid color, gradient, texture or custom image in background, changing PowerPoint views, adding slide transition, adding animation effects, running a slide show. Okay, so there is a lot to cover, but we'll do one by one. Okay. Okay. Hey friends, in your previous class you have learned about PowerPoint, which is a presentation software. So PowerPoint क्या है बेटा? PowerPoint presentation software है, right? जैसे MS Word को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे PowerPoint को बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. In this class, you'll learn some more about PowerPoint and also learn how to make a good presentation. आपने क्लास 4 में PowerPoint लर्न किया है, सीखा है. अब क्लास 5 में आप उसके बारे में और डिटेल में सीखोगे बेटा. ठीक है, you will learn more things, more methods to make your presentation good. Okay? So let's start. Introduction to PowerPoint. PowerPoint is a presentation program developed by Microsoft. मैंने आपको पहले ही बोला PowerPoint क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. इसीलिए ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है. किसने डेवलप किया? Microsoft. It is developed by Microsoft. It provides various views and tools which you can use to build a presentation that includes words, graphics and media. इसमें आप words यूज़ करके, graphics और media यूज़ करके बहुत ही अच्छी presentation बना सकते हैं. बहुत सारे tools हैं इसमें. tools मतलब ऐसे features हैं जिनसे आप changes कर सकते हैं, right? जिसको यूज़ करके आप attractive बनाते हैं अपनी presentation को, presentable बनाते हैं अपनी presentation को, right? A PowerPoint presentation is also known as a slide show. जो PowerPoint presentation होती है उसको बोलते हैं start your PowerPoint presentation या start the slide show. So PowerPoint presentation को हम slide show भी बोलते हैं. Okay? One page of your presentation is called slide. And a group of pages on any one topic is called presentation. अगर आपको बोला जाए create a presentation, so presentation का मतलब है कि खूब सारी slides होंगी, उनको मिलाकर आप एक presentation बनती है. और एक slide जो होती है, एक पेज जो होता है उसका वो आप उसको बोलते हैं slide. So presentation के एक पेज को हम slide बोलते हैं और कई सारी slides को मिला के हम क्या बोलते हैं उसको? प्रेजेंटेशन. ओके. PowerPoint contains several features for creating a presentation. PowerPoint में बहुत सारे features हैं presentation बनाने के लिए. You can add text, sound, video and animation in your presentation using PowerPoint. PowerPoint use करके आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, साउंड अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें साउंड ऐड कर सकते हैं, उसमें वीडियोस भी बीच में डाल सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. एनिमेशन इफेक्ट्स बहुत सारे डाल सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, जैसे टेक्स्ट उड़ के आ रहा है, फ्लैश हो रहा है, फिर चला जा रहा है, टेक्स्ट ब्लाइंड्स में आ रहा है. देयर आर many animation effects which we can put, right? We'll do it further, when we'll move ahead with the topics. We'll do. When animation effects will come, then I'll tell you about different effects. Okay? Through presentations, you can communicate ideas, messages and other information. बेटा आपको presentation की क्या ज़रूरत होती है? आप अपने ideas
अपने कुछ मैसेज देना चाहते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू आप दे सकते हैं. जैसे आप कोई टीचिंग क्लास ले रहे हैं तो उसमें आप प्रेजेंटेशन के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं. बहुत सारी मैम आपको प्रेजेंटेशन दे के पढ़ाती होंगी, राइट. देन कोई मीटिंग्स होती हैं, आप मूवीज़ देखते हो, आप लोग मूवीज़ और सीरियल्स में आज मुझे प्रेजेंटेशन देनी है और ऐसे होता है, राइट. तो यानी आपके ऑफिसेज में जब आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है तो आपको अपना इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अपने डिटेल्स देने होते हैं, अपनी क्वालिटीज़, अपने फीचर्स, अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स देने होते हैं. तो अगर उनको पसंद आएगी आपकी प्रेजेंटेशन क्या पसंद आएगी, प्रेजेंटेशन में आपकी डिटेल समझ आते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, राइट. सो प्रेजेंटेशन क्या होता है, उससे आप, क्योंकि जो चीज़ बोली जाती है वो बंदा भूल जाता है, वो पर्सन भूल जाता है, बट जो चीज़ वो देखता है वो ज़्यादा याद रहता है. इसलिए ये प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया, राइट. बिकॉज वॉट यू सी यू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो देखना और सुनने में आपको फिर याद रहती हैं चीज़ें, इसलिए प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन प्रेजेंट एंड कम्युनिकेट योर आइडियाज़. सो जैसे आपको अपने फैमिली, किसी का बर्थडे है आपकी फैमिली में, तो उसके लिए उसके ऊपर प्रेजेंटेशन, वो जब 3 months का था तब की पिक, तब कुछ उसके जब वो शरारतें करता था, यू कैन राइट दैट. देन वो 6 months का हुआ या 1 year का हुआ, देन 2 year को अपने ब्रदर सिस्टर को ऐसे गिफ्ट्स दे सकते हैं प्रेजेंटेशन बना के. पेरेंट्स पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, फैमिली पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आप लोग अपने स्कूल पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, राइट. देयर आर डिफरेंट मैनी टॉपिक्स, n नंबर ऑफ टॉपिक्स, अनलिमिटेड, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. और ऐसी जो पर्सनल प्रेजेंटेशंस जो होती हैं फैमिली, स्कूल, ये होती है कि जस्ट टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी. कि आपने कभी, क्या होता है, आप अपनी फैमिली को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि आप उनसे कितना प्यार करते हो या आपके लिए वो क्या मैटर करते हैं. या आपको स्कूल के लिए प्रेजेंटेशन बना रहे हो, just to tell your principal that how good his work is, या what all he is doing for the school, और आप उस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे हो और आप लोग बहुत हैप्पी हो और सर की वजह से बहुत सिक्योर फील करते हो. यू कैन डू दैट ऑल्सो. बहुत सारी चीज़ें हैं आप इससे कर सकते हैं. देयर आर मैनी अदर टॉपिक्स एज वेल. टॉपिक बेस्ड प्रेजेंटेशन, एज इन कोई सब्जेक्ट का चैप्टर आपको पढ़ाना है या पढ़ना है, प्रेजेंट करना है, किसी और को पढ़ाना है, तो भी आप उसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बना के दिखा सकते हैं बच्चा, राइट. टॉपिक्स, सब टॉपिक्स बीच आ गया, फिर सब टॉपिक्स को एक एक लेके उसका डिटेल, उससे रिलेटेड पिक्चर्स इंसर्ट करके, उससे रिलेटेड वीडियोस भी इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी साउंड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन इंसर्ट एंड मेक योर प्रेजेंटेशन a good presentation. PowerPoint gives you the flexibility to make presentations using a projection device attached to a personal computer and using overhead transparencies. बेटा जो PowerPoint एक flexibility है कि आपने जो presentation बनाया, प्रोजेक्शन डिवाइस आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर पे कोई डिवाइस अटैच कर दी और प्रोजेक्टर चल रहा है उससे आप, या फिर ट्रांसपेरेंट शीट्स भी होती हैं, तो वो आपके सिस्टम की जो भी प्रेजेंटेशन आपके लैपटॉप पे है वो प्रोजेक्टर पे दिखेगी. अगर प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दिया तो बड़े स्क्रीन पे सब आपकी प्रेजेंटेशन देख पाएंगे. अगर आप बड़े ग्रुप को दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन, राइट. अगर किसी एक को दिखानी है तो आप 1-on-1 भी शो कर सकते हैं, राइट. नाउ स्टार्टिंग पावरपॉइंट शुरू कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करेंगे. विंडोज़ मस्ट बी रनिंग टू स्टार्ट पावरपॉइंट ओपन करने के लिए आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे विंडोज़ होना चाहिए, राइट. फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले आपको कहाँ क्लिक करना है, स्टार्ट बटन पे. स्टार्ट बटन कहाँ है, ये देखिए, ये है आपका स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर एक पॉपअप मेन्यू आएगा. इस मेन्यू को बोलते हैं स्टार्टअप मेन्यू आया. इसमें आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऑल प्रोग्राम्स. जब आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया तो एक साइड मेन्यू ओपन हो गया. इस साइड मेन्यू में बेटा ये थोड़ी सी हेजी है बट स्टेप्स क्लियरली दिख रहे हैं. दिस पिक्चर इज़ नॉट वेरी क्लियर बट द स्टेप्स आर क्लियर. एक साइड मेन्यू ओपन हुआ. इस साइड मेन्यू में आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है.
जब आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करोगे आप, तो एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने एप्लीकेशंस हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, सब आ जाएंगे लिस्ट। इसमें से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पे क्लिक करोगे, राइट। जब आप इस पे क्लिक करोगे देन क्या होगा, आपकी पावर पॉइंट की स्क्रीन जो कि ये है, ये ओपन हो जाएगी। दिस इज योर पावर पॉइंट स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे मैं रीड कर रही थी स्टेप, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, स्टेप 3 क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्टेप 4 क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। क्योंकि हम 2010 कर रहे हैं इसलिए इस पर 2010 लिखा है, 2007 भी है, 2003 भी है और भी है, राइट। सो जो अवेलेबल हो आपके घर पे डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, आप उसको ओपन करके चेक करिएगा, राइट। ट्राई डूइंग इट। एक्सक्यूज मी, द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विल अपीयर। जब आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट, अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन टाइटल प्रेजेंटेशन 1 इज डिस्प्लेड इन द पावर पॉइंट विंडो। पावर पॉइंट विंडो ओपन होगी जिसके टाइटल क्या होगा, प्रेजेंटेशन 1। ये देखिए इसका टाइटल क्या है, प्रेजेंटेशन 1, ठीक है। जब आप MS वर्ड ओपन करते हो तो उसमें क्या टाइटल आता है, डॉक्यूमेंट 1। तो प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करते ही क्या टाइटल आता है, प्रेजेंटेशन 1, ओके। देन पावर पॉइंट विंडो, पावर पॉइंट विंडो with the help of several items displayed in the PowerPoint window you can perform your task efficiently। अब PowerPoint विंडो ये है जो विंडो ओपन होती है PowerPoint ओपन करने के बाद, दिस इज द PowerPoint विंडो, फाइन। ये आपकी PowerPoint विंडो है। आज हम इसके आगे और नहीं करेंगे, हम विंडो के पार्ट्स को रीड करेंगे, राइट। वील अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द विंडो, राइट। सो द फर्स्ट इज द टाइटल बार। टाइटल बार शोज द नेम ऑफ द डिस्प्लेड प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन ओपन है उस प्रेजेंटेशन का जो भी नाम है वो टाइटल बार पे आता है। बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन अगर आपने सेव नहीं की है किस नाम से, जब तक आप सेव नहीं करोगे वहाँ प्रेजेंटेशन 1 लिखता रहेगा। जैसे एज सुन एज आप किसी नाम से प्रेजेंटेशन को सेव करोगे वहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 की जगह वो नेम डिस्प्ले हो जाता है, ओके। नाउ आप प्रेजेंटेशन का नाम कैसा देते हो, जिस चीज़ की प्रेजेंटेशन है उसी से रिलेटेड आप नेम से सेव करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, राइट। सेकेंड इज फाइल टैब। व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल टैब a backstage view appears which resembles a menu in backstage view. You will find a list of commands like save, open, print, etc. बेटा ये जो फाइल टैब है, this is your फाइल टैब। ये रेड कलर की है, दिस इज रेड हाईलाइट किया हुआ है उसको, ये आपका फाइल टैब है। जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं एक मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें लिखा होता है न्यू, मतलब आपको न्यू कुछ ओपन, न्यू स्लाइड ओपन करनी है और उसमें सेव का ऑप्शन आता है, ओपन का ऑप्शन आता है, प्रिंट का ऑप्शन आता है। ऐसे ऑप्शंस, एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें ये ऑप्शंस आते हैं जब आप फाइल टैब पे क्लियर करते हो कि फाइल को आपको सेव करना है कि ओपन करना है या प्रिंट करना है या सेव एज करना है, और भी ऑप्शंस हैं, यू डू इट एंड देन यू विल कम, बहुत सारी लिस्ट है, राइट। यस, नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस, नाम से ही पता चल रहा है, क्विक, जल्दी से एक्सेस करना, किसी चीज़ को जल्दी से एक्सेस करना, जल्दी से उस काम को कर लेना बिना मेन्यू में जाके और ओपन करना कोई टैब, फिर करना और एक जल्दी से कर लेना। तो किसी चीज़, कुछ क्या होता है आपके फ़ोन पे भी ऐसा होता है कि कुछ आइकन्स आप मेन स्क्रीन पे रख देते हैं, बाकी तो अंदर सब सेटिंग्स में रहता है, ये जब अंदर की स्क्रीन ओपन होती है। कुछ आप मेन कंट्रोल बाहर का मेन स्क्रीन पे कुछ ही आइकन्स रखते हैं, राइट, सारे चीज़ें नहीं रखते, कुछ फोल्डर्स बाहर रखते हैं। तो उसी तरह बेटा जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ऐसा टूल बार जो चीज़ें, जो काम आपको जल्दी जल्दी करना पड़ता है एक प्रेजेंटेशन बनाने में या कुछ भी, मतलब कोई भी फाइल पे वर्क करने पे, तो वो कुछ टूल बार्स आपके ऊपर रहते हैं। उसमें क्या होता है, बटन्स होते हैं, किस चीज़ का, सेव बटन, अंडू बटन और रीडू बटन। ये 3 चीज़ों के कमांड्स होते हैं उस क्विक एक्सेस टूल बार पे। आई विल शो यू द क्विक एक्सेस टूल बार।
ये है क्विक एक्सेस टूल बार। फ्लॉपी बनी है, फ्लॉपी मतलब सेव, राइट। उसके बाद अंडू और रीडू बटन। अंडू यानी लास्ट एक्शन जो भी आपने किया है उसको हटा देना, रीडू उस लास्ट एक्शन को फिर से कर देना। अगर कुछ अंडू कर दिया गलती से तो वापस से उसको ले आना, दैट इज रीडू। सो ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऑप्शंस, ये कमांड्स होते हैं। नेक्स्ट इज रिबन, displays group of related commands in tabs. Each tab offers shortcut buttons to common task. बेटा जब आप टैब पे क्लिक करते हैं, किसी भी होम टैब पे क्लिक किया, इसमें देखो होम पे क्लिक है तो पीछे इतना बड़ा सा ये जो वाइट पूरा जिसमें बहुत सारे कमांड्स हैं, ये क्या है? रिबन। इसको क्या बोलते हैं? रिबन। लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं ये जो होम टैब के अंदर आते हैं। तो आपको ये सारे रीड करोगे आप, जिससे आपको पता हो कि अच्छा जब मुझे शेप्स इंसर्ट करना है, शेप्स चाहिए या कुछ शेप की आउटलाइनिंग देखनी है या कुछ फाइंड करना है, कुछ वर्ड आपको पूरी प्रेजेंटेशन में, या अलाइनमेंट्स देखने हैं, तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, ये सब चेक कर। तो आपको कौन से टैब के अंदर जाना है? होम टैब। जब होम टैब के पे क्लिक करेंगे तो जो एक पैनल टाइप ऐसे खुल जाता है पूरा, जिसमें खूब सारे कमांड्स होते हैं उसी से रिलेटेड, तो उसको क्या बोलते हैं? रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। ओके। नेक्स्ट इज विंडो कंट्रोल बटन्स। विंडो को कंट्रोल वाले बटन्स जो विंडो को कंट्रोल करें। अब विंडो के साथ आपको क्या करना है? या तो विंडो को छोटी करना है, या विंडो को रीस्टोर करना है, या बंद करना है, या फुल साइज का करना है, या तो मिनिमाइज करना है विंडो को। मिनिमाइज किया आपने विंडो, तो कभी कभी मिनिमाइज उसमें ऑप्शंस ऐसे सेलेक्ट होते हैं कि मिनिमाइज में वो विंडो छोटी हो जाती है, कभी कभी एकदम उस पर चली जाती है, टास्क बार पे छोटी सी पूरी एक टैब बन जाता है बस। कभी कभी मिनिमाइज में वो छोटी हो जाती है, वो डिपेंड करता है आपने कैसी सेटिंग की हुई है। रीस्टोर मतलब जो पहले सेटिंग थी उसमें चले जाओ, तो रीस्टोर में वापस से बड़ी कर देता है विंडो को, या फिर विंडो को क्लोज करना। सो विंडो को कंट्रोल करने वाले बटन्स ये हैं। एक सिंगल डैश जो होता है ये मिनिमाइज होता है, बॉक्स जो होता है ये रीस्टोर होता है, क्रॉस जो होता है वो क्लोज होता है, राइट। तो विंडो को मिनिमाइज करना, ये विंडो मतलब खिड़की नहीं, विंडो मतलब ये पावर पॉइंट का ये जो बॉक्स खुलता है आपके डेस्कटॉप पे, जो आपको कंप्यूटर सिस्टम्स पे दिखता है, इसको बोलते हैं विंडो, ठीक। तो ये इस विंडो को कंट्रोल करने का बटन, मिनिमाइज यानी छोटा कर देगा, रीस्टोर मतलब वापस बड़ा कर देगा, और क्रॉस मतलब क्लोज कर देगा, राइट। नेक्स्ट इज, और थंबनेल व्यू भी होता है, राइट। ये है स्लाइड को व्यू करने का तरीका, किस तरीके से आपको स्लाइड्स देखनी है, ओके। स्लाइड पेन डिस्प्लेज अ लार्ज व्यू ऑफ द करंट स्लाइड्स। जो भी करंट स्लाइड है आपकी, जो उस समय आपने ओपन की हुई है, उस स्लाइड का बड़ा व्यू दिखाता है। ऑन द राइट, विंडो के राइट साइड पे जो बड़ी सी स्लाइड दिखती है, ये बड़ी स्लाइड दिख रही है, इसको बोलते हैं स्लाइड पेन। ये पेन है जिसमें आप बड़ी जो स्लाइड सेलेक्टेड है वो बड़ी दिखती है इस पे, स्लाइड पेन पे, ओके। नेक्स्ट इज स्प्लिटर बार। स्प्लिटर बार से आप स्लाइड पेन, ये स्प्लिटर बार है, इससे आप विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये स्लाइड व्यू वाली जो है ये चौड़ी हो जाए, तो आप इसको राइट साइड क्लिक कर दोगे, ये पतली हो जाए तो यू कैन क्लिक एंड स्लाइड इट। स्प्लिटर बार है, स्प्लिटर बार को छोटा बड़ा कर सकते हैं स्लाइड करके, राइट, अकॉर्डिंग टू योर नीड। नोट्स पेन, अगर आपके प्रेजेंटेशन में व्यूअर्स को, जो आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, उनको कोई नोट्स देने हैं, यानी कुछ बताना है, कोई मैसेज देना है, स्लाइड से रिलेटेड कोई रिमार्क मेंशन करना है। डिस्प्लेज द नोट्स फॉर द करंट स्लाइड। दिस इज अ टेक्स्ट दैट कंसिस्ट ऑफ रिमार्क्स टू शेयर विद योर ऑडियंस। जो आपका के ऑडियंस हैं, जो आपकी स्लाइड देख रहे हैं, उनसे कुछ शेयर करना है, उन रिमार्क जो स्लाइड चल रही है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे आप ऐड करते हैं नोट्स पेन पे। दिस इज योर नोट्स पेन, क्लिक टू ऐड नोट्स, ओके। नेक्स्ट इज स्टेटस बार।
Status bar consists of a message area. The message area displays the current slide number and the total number of slides in the slideshow. Status bar आपका message area होता है, उसके इसमें एक message area होता है, उस message area में display क्या होता है? Current slide number and total slides in the slideshow. ये है आपका स्टेटस बार. इसमें लिख क्या आ रहा है? स्लाइड 1 of 1, यानी कि अभी इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही स्लाइड है और आपने उसी को ओपन किया हुआ है 1 of 1. अगर 10 स्लाइड्स होंगी तो 1 of 10, सेकेंड वाली स्लाइड सेलेक्टेड है तो 2 of 10, ऐसे लिख के आता है, राइट. द नेक्स्ट इज व्यू बटन्स. व्यू बटन्स allows you to quickly change the view of your presentation. Is displayed on the screen. Normal view, slide sorter view, reading view and slideshow view are the 4 main views of PowerPoint. View buttons ये हैं आपके. इसमें आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से दिखेगी, ये 4 व्यू होते हैं. तो आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह दिखेगी, ये जिस बटन पे क्लिक करोगे उस तरीके से प्रेजेंटेशन आपकी दिखने लगेगी बेटा. ओके, राइट. कौन कौन से व्यूज़ होते हैं? नॉर्मल व्यू जैसे आपका दिख रहा है उसमें. स्लाइड सॉर्टर व्यू यानी सॉर्टर व्यू हो जाता है, उसमें आप ऊपर नीचे स्लाइड्स को कर सकते हैं. जस्ट नीचे वाली ऊपर सॉर्ट करना, स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, रीअरेंज कर सकते हैं. रीडिंग व्यू यानी कि पढ़ने के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, उसमें क्या क्या लिखा है. स्लाइड शो व्यू यानी कि स्लाइड शो यानी प्रेजेंटेशन करके स्लाइड शो करना, राइट. सो ये 4 मेन व्यूज़ हैं. Now the last of the window is text placeholder. Allows you to type titles, body text and bulleted list in text placeholders. कुछ भी आपको लिखना है प्रेजेंटेशन में, ये हैं आपके text placeholders. Whatever you want to write in the presentation, titles लिखना है, bulleted list बनानी है, कुछ पॉइंट्स में लिखना है, कुछ पैराग्राफ में, whatever you want to write, ये आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में क्या लिखना चाहते हैं. तो you will do it here, you'll type it here. इसको बोलते हैं text placeholder. Okay? I hope आपको PowerPoint विंडो क्लियर है, इसके पार्ट्स क्लियर हैं बेटा, राइट. इन केस अगर नहीं क्लियर है, आपको कोई कंफ्यूजन है, you can ask me. Fine? Thank you children. Have a nice day.